Good morning, student. Today I am going to tell you about the surface area and volume of class 9th subject mathematics exercise 13.3. Okay, so let's start. In exercise 13.3, there is a problem regarding cone. Okay, first of all, listen. Uh, uh, this is a cone. First of all, this is a cone. Okay, and in a cone there are a base radius. This is your base radius, and this is your L, and that is called slant height, and this is your height of the cone. Okay, and in this exercise we have to calculate the CSA, curved surface area, CSA, curved surface area, and TSA and TSA, total surface area. So then first CSA, how to find the CSA? CSA you can find by the help of phi RL. This is the formula for the CSA. And TSA, when you add pi RL plus the area of the base circle, pi r square. Okay, that then it becomes the TSA. Okay, so here first question, exercise 13.3, first question. Okay, diameter of the base of cone is 10 point, यानी कि कोई ये cone है, this is a cone. Okay, and here the diameter, this is the diameter of the base. Okay, so here that is given diameter of base of cone is 10.5 centimeter, and its slant height means L is equal to 10 centimeter. Then find the CSA. CSA is equal to what is the formula for CSA? Say pi RL. Pi RL is the formula for the CSA. Okay, bachcho, when you put the value of pi is the 22 upon 7, and what is the R? And that in this question the diameter of the base of the cone is given, and then R is the half of the diameter. So then 10.5 divided by 2. 10.5 divided by 2, this is the radius, 10.5 divided by 2 centimeter. So then when you put the value of R in this formula pi RL, the pi value of pi is the 22 upon 7, and R is the 10.5 divided by 2. And what is the L? L is the slant height, and which is given 10 centimeter. When you multiply it by slant height 10, then when you solve this question, then it becomes the 22 upon 7 into 10.5. You can change into remove the decimal, divide by 10, and it is the 105, and divide into में 2, into में 10, 10 to cancel, and 2 11 से ये कट गया आपका 22, एंड ये इसे हो गया 7 1 जा 7, and 7 5 जा. When you multiply 15 into 11, 5 जा 55, and 11 1 जा 11, and 5 16. So here 165 centimeter square is the area CSA for the cone. Okay बच्चों, next question.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया of a cone if its slant height is 21 meter, sorry, and diameter 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 of its base is 24 meter. Okay, so in this question you have to find the TSA, total surface area. So then what solution. So here the what are the given values? Slant height means L is the 21 meter. Okay, and the diameter diameter is 24 meter. So then what is the R radius? It is the half of the diameter, it becomes the 12 meter. Okay, so then when you find the TSA, so then what is the formula for the TSA? TSA, total surface area. So then formula for the TSA will be pi RL plus pi R square. So then when you simplify this formula, pi R common and L plus R in the bracket. When you put the value of pi 22/7 into R is the 12 meter into में L plus R. What is the L? L is the 21 and R is the 12. When you add 21 plus में 12, it becomes the 33. Okay. When you solve this question, so then your answer becomes the 1244.57 meter square. Okay, this is the TSA for the cone. Next question. Question number 3. What is the question number 3? The curved surface area of a cone. आपको CS से गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 308 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड slant height and its slant height is 14 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में? फाइंड क्या है? फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड पार्ट है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें TSA के लिए फार्मूला आपको पता ही है कि पाई आर, फार्मूला फॉर द TSA क्या होता है बच्चों? पाई आर इंटू में L प्लस आर. ओके, तो व्हाट इज़ द गिवन वैल्यू? CSA पता है, तो CSA का फार्मूला क्या होता है? CSA इज इक्वल टू हेयर पाई आर एल. CSA क्या होता है बच्चों? पाई आर एल. तो CSA आपको गिवन है यहाँ पर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ आपको आर नहीं गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? आर निकाल लेंगे. तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए. ये आपका क्या है? कोन का. ठीक है, ये डायमीटर है और ये इसकी हाइट है और ये इसकी एल है, स्लैंट हाइट है. ठीक है, तो यहाँ स्लैंट हाइट एल आपको पता है, आपको हाइट नहीं पता है. ठीक है, केवल आपको एल पता है और आपको ये भी नहीं पता, इसमें क्या बोलते हैं, डायमीटर भी नहीं पता. तो कैसे सोल्व करोगे बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको
ये निकाल लेंगे। 30 CSA का फार्मूला पाई आर एल में, तो CSA गिवन है 308, ठीक है। और यहाँ पर पाई की स्थान पे आपने 22/7 कर दिया, आर हमें पता नहीं, निकालेंगे। इनटू में एल आपको गिवन है, एल इज़ द आपका है 14 सेंटीमीटर। तो जब आर निकालेंगे यहाँ आप, आर इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 308, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर चली जाएगी, और 22 × में 14 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो 2 से ये गया 14, 7 2 जा 14, और फिर यहाँ से ये आप काट सकते हैं इसको, तो ये भी कट जाएगा। 2 से गया ये, तो ये आ गया आपका 154, ओके। अब ये भी कट जाएगा इससे, 7 पे गया, ठीक है। तो यानी आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 7 सेंटीमीटर आ गया, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट में था रेडियस निकालनी थी, तो सेकंड में क्या है, TSA निकालना। तो TSA का फार्मूला क्या है बच्चों, TSA है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, इंटू में आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर आपका अभी आपने निकाला 7 है, इंटू में एल प्लस आर, एल आपका 14 है, ठीक है। ये रहा 14, तो 14 प्लस में 7 यानी कि 21 हो जाए। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू में 21 की जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका TSA आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ए कैनोनिकल टेंट है इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। क्या है, एक आपका कैनोनिकल क्या दे रखा है, टेंट है जो कि 10 मीटर हाई है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हाइट वाला, ये है 10 मीटर, ठीक है। और फिर क्या कहता है, रेडियस है इसकी, ये बेस रेडियस दे रखी आर इजक्वल टू, ये दे रखी 24 मीटर, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसमें आपको नंबर 1, एक तो फर्स्ट पार्ट में करना है आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, आपको स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको फाइंड आउट करना है, ओके बच्चों। और सेकंड क्या आपको फाइंड आउट करना है, सेकंड इसमें करना है आपको द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज, यानी कि एक हमें वो बनाना है, टेंट बनाना है, टेंट के ऊपर एक हमने यानी कि पर्दा लगाना है, ठीक है, इसकी टेंट की ये कोन की तरह। तो उसका जो खर्चा है वो 70 रुपीज़ है 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि स्लैंट हाइट जो एल है, तो ये एल निकालनी, तो एल के लिए क्या होगा, आपको ये पता है ये क्या है, ये इस कोन के अंदर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो बच्चों, ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये एल की वैल्यू आपको निकालनी हो, और आपको ये परपेंडिकुलर वाली जिसको हाइट बोलते हैं ये पता हो, और जो बेस रेडियस है वो पता हो, तो क्या होगा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप देखेंगे हाइपोटेन्यूस मतलब एल है, इज इक्वल टू एल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका 24 का स्क्वायर है, प्लस में 10 का स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, प्लस में 10 का स्क्वायर है मतलब 100। तो ये है एल, अगर निकालेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, 576 प्लस के 100, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √ऑफ 676, और 676 का स्क्वायर रूट होता है 26, आपका 26 आपका ये आ जाएगा मीटर में है ना, तो मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो स्लैंट हाइट है वो आपकी 26 मीटर आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या था बच्चों इसका,
सेकंड पार्ट आपको निकालना था, यानी कि कितनी कॉस्ट लगेगी जो कैनवास इसके ऊपर लगाने में, जो टेंट बना हुआ है। तो वो था आपका 1 मीटर जो स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो है 70 रुपीज़। तो हमारा ये 26 तो अभी एल है, तो सबसे पहले हमारा क्या मेन मोटिव होगा कि हम क्या निकाल लें इसका। बताइए बच्चों, हम क्या निकालेंगे इसका। इसका आप क्या निकालेंगे जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। आप इसका पहले सी एस से निकालिए। तो क्या निकालेंगे, सी एस से। तो सी एस से का फार्मूला क्या है बच्चों, पाई आर एल। ठीक है। तो पाई आर एल में पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है 22/7। इंटू में आर आपका कितना है 24 है, और इंटू में जो आपका ये निकला एल है वो 26 है। तो ये इसको ये क्या नाम है, जब वो करोगे आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका मतलब सी एस से बन जाएगा आपका, ये सी एस से बन गया। ठीक है। तो अभी ये कहता है कि 1 मीटर स्क्वेयर एरिया का 70 रुपीज़ है। तो इतने एरिया का कितना होगा, इतने एरिया का। तो ये क्योंकि पूरा कट नहीं रहा तो हम इसको इतना छोड़ देंगे। इसके बाद में हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से जो हमारा पीछे कितना आया है सी एस से, सी एस से हमारा आया है, ये हमारा सी एस से बना था 22। ये पीछे हमने देखा था, इसमें 22/7 इंटू में 24 इंटू में 26। ठीक है। तो हमें ये पता है जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर 1 मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर स्क्वेयर जो कनवास की जो कॉस्ट है वो है 70 रुपीज़। ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा इस एरिया का, तो हम कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट 70 रुपीज़ तो है ही, इंटू में 22/7 इंटू में 24 इंटू में 26। तो जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 137 और 0.280। ये बन जाएगा आपका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 137 और 280 हो जाएगा इसका। ठीक है। ये सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये आपका है 1 मिनट, 137,280, यानी कि ये आ जाएगा आपका टोटल रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपए आएंगे। क्लियर है बच्चों। इससे काटोगे ये 10 पे चला गया, तो 10 से इसका 200 आपका ये 20 इंटू में 24 इंटू में 26, तो इतना कॉस्ट आ जाएगी ये आपकी कैनवास के एरिया की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है बच्चों 13.3 का एक्सरसाइज का। व्हाट लेंथ ऑफ द tarpaulin 3 meter wide will be required to make canonical tent of height 8 meter and base radius is 6 meter. Okay, assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ओके तो मतलब क्या कहता है, जो एक कैनोनिकल टेंट बनाया है तो उसके ऊपर जो तारपुलिन हम करेंगे जिसकी विड्थ है वो 3 मीटर की है, तो वो कितना लगेगा, और जिसकी ये बेस रेडियस दिखा रखी है 6 मीटर उस कैनोनिकल टेंट की, और हाइट है 8 मीटर का, हमें क्या है उसके ऊपर ऐसे तरपाल हमें ढकना है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर तरपाल की ये लेंथ पूछ रहे हैं कि कितनी होगी, जिसकी विड्थ है 3 मीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है ना बच्चों वो आप मतलब जब सोल्व करो क्वेश्चन रख लीजिए। तो क्या क्या गिवन आपको, सबसे पहले आपको हाइट एच पता गिवन है, ये आपका मान लीजिए क्या है, एक कैनोनिकल ये आपका टेंट है जिसमें ये आपकी हाइट है। ठीक है। तो एच गिवन है इसमें कितनी, एच गिवन है इसमें 8 मीटर, 8 मीटर। और जो बेस रेडियस है कैनोनिकल टेंट की जो आर है वो है 6 मीटर। और जो स्लैंट हाइट है ये एल है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस। तो क्या है पाइथागोरस, जो हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर, तो क्या आ जाएगा एल का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर प्लस में
एच का स्केयर है, तो एल इज इक्वल टू अंडर ऑफ आर का स्केयर प्लस में एच का स्केयर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, आपको पता है आर कितना है 6 का स्केयर हो जाएगा, एच कितना दे रखा है इसमें 8 है तो 8 का स्केयर हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 का स्केयर हो जाएगा 36 प्लस में 8 का 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, जब 100 हो जाएगा, 100 का स्केयर रूट करोगे तो आंसर आपका 10 मीटर आ जाएगा। तो ये 10 है ना आपका, 10 क्या है बच्चों, ये स्लैंट हाइट है, ये आपका 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सी एस ए निकालना पड़ेगा, इस कैनोनिकल टेंट का। तो सी एस ए के लिए क्या फार्मूला है, पाई आर एल। सी एस ए के लिए क्या फार्मूला बच्चों, पाई आर एल है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी, इसने क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू एक्चुअली यहाँ 3.14 लेनी है। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में हम क्या करेंगे, यहाँ 6 जो कि आपकी आर है, और इंटू में आपका ये 10 एल जो कि आपका 10 गिवन है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या है, सी एस से है। तब इसके बाद में क्या है, जो विड्थ दे रखी ना, विड्थ विड्थ है ऑफ तारपुलिन, तारपुलिन की विड्थ दे रखी है क्लॉथ की, वो दे रखी है 3 मीटर। ओके बच्चों, तो लेंथ ऑफ द तारपुलिन हम मान लेते हैं, लेंथ लेंथ ऑफ तारपोलिन क्लॉथ की लेंथ हम मान लेते हैं बच्चों कि वो हमने एक्स मान ली, एक्स मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इसमें लास्ट में ये कहता है कि जो 20 सेंटीमीटर का क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, वो वेस्टेज हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके आधार पे क्या होगा, इफ़ मान लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर क्लॉथ इज वेस्टेड इन कटिंग, कटिंग करने के दौरान है ना, ये 20 सेंटीमीटर है ना, जो इसका तारपुलिन क्लॉथ का जो ये वेस्ट हो जाता है इतना सेंटीमीटर, देन लेंथ इसकी जब इतना वेस्ट हो गया तो लेंथ क्या होगी बताओ, एक्स हमने लेंथ मानी थी टोटल, तो ठीक है, लेकिन इतना वेस्ट हो गया तो बच गया कितना जो यूज्ड हुआ, एक्स माइनस के 20 अपॉन में आपका ये सेंटीमीटर था, तो ये 20 हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20/100 करना पड़ेगा, ये आपका मीटर में आ जाएगा। ओके, तो अब एरिया निकाल लेते हैं इसके बाद में, एरिया एरिया किसका, ऑफ तारपोलिन। ठीक है, क्लॉथ, ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें वो पता ही है, विड्थ इसकी पता ही है वो 3 थी, और लेंथ हमारी जो अभी यूज्ड है वो बनी है एक्स माइनस के 20/100। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया बन गया। तो एज पर कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो सी एस से हमने ऊपर निकाला 3.14 जो ये रहा, ठीक है, 3.14 इंटू में 6 इंटू में 10, वो इस एरिया के बराबर होगा, तारपुलिन के क्लॉथ के एरिया के बराबर होगा, 3 इंटू में एक्स माइनस 20/100। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ से बच्चों, तो ये कैसे हो जाएगा देखना, ये 3 नीचे ले आऊँ मैं, 3.14, ठीक है, इंटू में 6 इंटू में 10 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस के 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 3 2 जा 6, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 यानी कि 62 आपका ये आ जाएगा आंसर बच्चों। जब हम इसको सोल्व करें 62.8 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 20/100। तो जब एक्स की वैल्यू सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका एक्स इज इक्वल टू, ये इधर लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 62.88 प्लस के, इसको हम क्या कर सकते हैं 20/100 है, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 यानी कि 0.2। ठीक है, तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 63 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो तारपुलिन जो क्लॉथ था उसकी जो लेंथ होगी ना वो 63 मीटर की होगी।
ठीक है ना, रिक्वायर्ड जो लेंथ है। समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, द स्लेंट हाइट एंड बेस। पहले डायग्राम बना लीजिए, ये आपका क्या हो गया, एक कोन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये स्लेंट हाइट, ये इसकी हाइट और ये इसका बेस रेडियस है। ठीक है, तो स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कैनोनिकल टॉन्ग आर 25 मीटर। तो यानी एल दे रखा है 25 आपका मीटर, एंड बेस डायमीटर, ये जो डायमीटर है वो दे रखा 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से जो रेडियस है वो किसके बराबर होगी, 14/2, मतलब कि 7 मीटर के बराबर हो जाएगी, जो आपकी ये बेस रेडियस है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें क्या है दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ। मतलब कि इस कोन के हमें क्या करनी है, वाइट वॉश करनी है। ठीक है ना, वाइट वॉश करनी है। ठीक है, तो वो कितना है, ताकि जो खर्चा बता रखा है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया का है, 210 जो रुपीज़, इतना रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम पहले, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो एल है वो हमें पता है 25 मीटर है, और यहाँ से फिर हमारी जो रेडियस बन गई वो 7 मीटर बन गई, हमने डायमीटर का हाफ करके निकाल ली। तो सबसे पहले हम सी एस से निकाल लेते हैं, सी एस से। ठीक है, तो सी एस से कितना हो जाएगा, πRL। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 इंटू में आपका 7 इंटू में, और ये आपकी एल है 25, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आपका 50 आ जाएगा। तो ये आपका सी एस से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा था इसने, मतलब जो खर्चा बताना है जो वाइट वॉश करने का, तो वो कितना दे रखा है कि जो आपका 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वाइट वाश की वो दे रखी है 210 रुपीज़। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ कितना, 550 मीटर स्क्वायर जो एरिया को करने में वो कॉस्ट होगी, कितनी होगी, तो यहाँ 210 इंटू में 550 और डिवाइड बाय 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो, ये इस जीरो से जीरो, तो यानी 21 इंटू 55 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1155। ठीक है, 1155 आ जाएगा, इतने रुपया खर्च होगा। ओके बच्चों, ला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक जोकर कैप है इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। यानी कि एक जोकर की कैप है ना, वो क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन की तरह है। ठीक है ना, इस तरह है। ठीक है ना, अब ये क्या है, बेस रेडियस है इसकी आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दे दी ये वाली एच, ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। मतलब एरिया निकालना इस तरह की, अगर 10 हमें कैप बनानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो गिवन है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा जो इस कैप की, जोकर कैप की हाइट कितनी है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब है इसमें एल, जो स्लैंट हाइट किसके बराबर आ जाएगी, आपको पता है फार्मूला, एल ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, बेस का स्केयर यानी कि 7 का स्केयर प्लस में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और 24 का स्केयर है। तो 7 का स्केयर कितना होता है 49, प्लस में 24 का जो स्केयर होता है वो कितना होता है 576 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब सोल्व करेंगे 625, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एल आ जाएगा हमारा, ये जो एल है स्लैंट हाइट है ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम सी एस से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सी एस से निकालने के लिए फार्मूला πRL हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर क्या है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7 इंटू
आर की जगह क्या रखेंगे, जो हमें रेडियस दे रखी 7 इंटू में एल की जगह हमारा 25, ठीक है ना। जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 7 से 7 और 22 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 ये आपका सेंटीमीटर में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमें निकालना इस तरह की 10 कैप का जो एरिया क्या होगा, तो देयरफॉर ऑफ सीट एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 जोकर कैप 10 जोकर्स कैप कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 550 को, तो ये आ जाएगा 5500 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है। क्या कहता है देखना, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। मतलब जो बस स्टॉपेज के होते हैं, बस के स्टॉप है वो बैरिकेड्स से बनाए हैं फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग द 50 होलो कॉन्स। आपने देखा होगा जब भी कोई रोड के ऊपर है कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो क्या है, ऐसे कॉन टाइप के ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 50 होलो कॉन है मेड ऑफ द रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, ये किसी कार्डबोर्ड के रिसाइकिल करके बनाए गए हैं। ईच कॉन हैज़ ए बेस डायमीटर, यानी प्रत्येक का जो डायमीटर है ना कॉन का वो गिवन है यहाँ पर आपका 40 सेंटीमीटर है। तो सीधी बात है रेडियस क्या आ जाएगी, ये 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है बच्चों इतना तो। फिर इसके बाद में क्या है, तो ईच कोन हैज़ द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है इसकी, इस एक आपके कोन की ये हाइट h है, ये दे रखी है आपकी 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। अब क्या है, जो कोन है ये आपका बैरिकेटेड के रूप में यूज़ किया जाता है, इसके आउटर साइड में इसको पेंटिंग किया गया है, ठीक है। तो जिसका खर्चा आता है वो 12 मतलब रुपीज़ आता है, कितना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, मतलब इस तरह जो आपके कितने लगे हैं 50 ये कॉन लगे हैं, तो इन सब का जो पेंटिंग का कॉस्ट है वो कितना आएगा। तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 आपको लेनी है, ठीक है ना। तो अब सोल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो क्या है देखना, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको जो पता है डायमीटर इसका कोन का वो लिख लीजिए। डायमीटर आपका है 40, तो रेडियस बन गई इसमें आपकी 40/2, तो ये आ जाएगा 20। क्लियर है बच्चों, 20 आपकी आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो जब मीटर में कन्वर्ट करोगे 20/100 आपका मीटर, तो 0.2 मीटर आ जाएगा बच्चों, 0.2 मीटर। अब है इसकी जो कोन की हाइट है, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर गिवन है, ठीक है ना। तो अब एल निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट। तो एल किसके बराबर हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस में जो बेस रेडियस है उसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ आपको पता हाइट दे रखी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में जो आपकी ये दे रखी है बेस रेडियस है वो 0.2, मतलब हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, तो 0.2 मीटर का इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 प्लस में 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 1.04 बन गया, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट होगा बच्चों 1.04 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.02 होगा, क्योंकि 1 का होता है 1 ही, और 0.04 का 0.02 होता है। तो इसका मतलब है इसका आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1.02 आ जाएगा। तो अब क्या है, हम क्या करेंगे, जो आउटर सी एस ए निकाल लेंगे इस 1 कोन का। तो सी एस ए क्या आ जाएगा, फार्मूला है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, इंटू में आर की वैल्यू 0.2 है, इंटू में 1.02, ठीक है, जो कि क्या ही है आपकी स्लैंट हाइट है, ये अभी हमने निकाली 1.02। जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों
ये तो है एक कोण का, ठीक है। ऐसे हमें सी एस से निकालना है कितने का, जो 50 कोण है उनका। तो इसको क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर वाले 1 सी एस ए को 3.14 इंटू में आपका 0.2 इंटू में 1.02, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो अब ये क्या कहता है, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वेयर की आती है 12 रुपीज़, ठीक है। तो जो ऊपर हमारा ये एरिया बना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सी एस, पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया, पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स, जो 50 कॉन्स हैं उनका हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 12 तो है ही है, ठीक है, इंटू में 50, इंटू में 3.14, इंटू में 0.2, ये ऊपर दे रखा है। बस इसको क्या करना है, आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू में 1.02। जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 384.34, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट के बराबर, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अच्छा, तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स मैथ वाला, कौशिक। थैंक यू।